Assalamu alaikum, my dear students of class 9th. It is my lecture number 1 of chemistry for the chapter number 1, that is Introduction to Chemistry. In the previous chapter, we have discussed all the branches of chemistry. We have discussed the definition of chemistry and all the branches of chemistry in detail. And I have given you the homework to do the branches of chemistry in your registers or files. Hopefully you all are doing the homework on time. Now class, we will move towards the next topic in this lecture. In this class, our today topic is scientific approach in chemistry. What is meant by the scientific approach in chemistry? Chemistry, it is the, you know that it is a study of science, and science is the study of realities. So in science, the scientists try to find out the realities, facts. To reach towards the facts of any matter, there is a procedure. यानी किसी भी खास मामले में उसके रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, उसके नतीजे तक पहुंचने के लिए, रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, कि उसकी रियलिटी तक पहुंचने के लिए एक ख़ास तरीके को साइंस में केमिस्ट्री में फॉलो किया जाता है. दैट मेथड इज कॉल्ड एज द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री. यानी केमिस्ट्री में साइंटिफिक तरीके से किसी खास रिजल्ट पर पहुंचना. ओके, साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री डिपेंड्स अपॉन 4 steps. Number 1 step is the observation. Number 2 step is the hypothesis. Number 3 step is the theory, and then the last is the scientific law. Okay, students, I'm repeating. In chemistry, if a scientist wants to reach at any final point, any result, then he has to obey 4 steps. He has to follow 4 steps. यानी किसी भी साइंटिस्ट को अगर किसी मैटर में किसी रिजल्ट तक पहुंचना है तो उसको 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले केमिस्ट्री में भी और अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस में भी. ठीक है, यही स्टेप्स फॉलो होते हैं. नंबर 1 स्टेप इज द ऑब्जर्वेशन. नंबर 2 स्टेप इज द हाइपोथेसिस. 3 इज द थ्योरी एंड 4 इज द साइंटिफिक लॉ. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द step number 1. What is step number 1? That is observation. Okay, now students, I will tell you what is the observation. Observation is in the observation, different people observe a phenomena in different ways. Some of us observe something very critically to extract from it a new point. Observation is a basic tool to go forth for elaborating a phenomena, but it may vary from person to person according to his skills of elaboration. Observation of a thing is one of the scientific approach in chemistry. Okay, so, students, in this we have this all definition is given in your book. So now I am going to explain it. Observation. देखिए, observation एक बहुत सिंपल सी चीज़ है. आप कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं. Like if you are coming in the classroom, you will observe the things. If you are going to any guest house, then you will observe the thing. If you are going towards any picnic point, you will observe the things. तो ये इंसान की नेचर है कि वो किसी भी चीज़ को कहीं भी जाता है तो वो ऑब्जर्वेशन करता है. ठीक है, वो ऑब्जर्व करता है, चीज़ें वो देखता है, नोट करता है, कैसी हैं नोट करता है, किस तरह की हैं, क्या अच्छी लग रही हैं, वगैरह वगैरह. ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो है ना वो ऑब्जर्व करता है. ठीक है. अच्छा, नाउ बाय द पॉइंट ऑफ साइंटिफिक व्यू, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन. साइंटिफिक साइंस में ऑब्जर्वेशन का मीनिंग है कि आप किसी भी मैटर को देख रहे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं और उसको बहुत क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीपली जाके उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं. ठीक है,
सो इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पर्सन, यानी किसी भी मैटर को बहुत डीपली क्रिटिकली अच्छे तरीके से नोट करना, देखना, उसके बारे में सोचना, ठीक है, लाइक कोई चीज़ कैसे बनी हुई है, किस चीज़ की बनी हुई है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसकी शेप है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें देखना, करना, उसको नोट करना, ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, और जो है ऑब्जर्वेशन मे वैरी फ्रॉम पर्सन, इट मे वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी जो हर इंसान की जो है ना ऑब्जर्वेशन वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर इंसान की ऑब्जर्वेशन दूसरे इंसान से डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, इन हर इंसान के ऑब्जर्व करने का जो तरीका है वो दूसरे इंसान से डिफरेंट हो सकता है, इसलिए कि हर इंसान जरूरी नहीं कि एक ही तरह से सोचे, हो सकता है दो लोग हों और वो एक ही चीज के बारे में दो डिफरेंट ओपिनियन रखते हो, दो डिफरेंट राय रखते हो, तो इस तरह से जो है और हो सकता है वो दोनों ही सही हो, या हो सकता है उनमें से कोई एक सही हो, एक कोई गलत हो, इट डिपेंड्स। इसी तरह से जो है जो ऑब्जर्वेशन है वो हर इंसान की अलग अलग होती है, वो हर इंसान अलग अलग तरह से चीज़ों को देखता है। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू द एग्जाम्पल, ठीक है ना, एक छोटी सी एग्जाम्पल है, इट्स अ ग्लास ऑफ वाटर एंड दिस इज अ वाटर, हाफ वाटर। ठीक है, अब देखिए ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें हाफ वाटर फिल है, ठीक है, हाफ वाटर है, तो कोई इंसान लाइक इफ वन पर्सन वो कह सकता है कि हाफ ग्लास ऑफ वाटर एम्प्टी है। ठीक है, इसी बात को दूसरा इंसान ऐसे कह सकता है कि हाँ ग्लास ऑफ वाटर फुल है, यानी बात दोनों की सही है, लेकिन किसी ने ऐसे ऑब्जर्व किया कि एम्प्टी है, उसने उसका एम्प्टी पार्ट को नोट किया, दूसरे इंसान ने उसके हाफ फुल पार्ट को नोट किया, हाफ पार्ट को नोट किया, ठीक है, जो फिल है। तो दोनों ही सही है, लेकिन दोनों की ऑब्जर्वेशन, ये डिस्क्राइब करने का तरीका अलग अलग है। ऑब्जर्वेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ अ थिंग इज वन ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। किसी भी चीज की ऑब्जर्वेशन साइंस सबसे पहला स्टेप होता है कि आप किसी भी चीज के रिजल्ट तक पहुंच सके। तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, और सब जो है ऑब्जर्वेशन जो है बहुत जो है बेसिक एंड इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो कि आपको आगे फर्दर स्टेप्स की तरफ मूव करवाता है, आपको लेके जाता है वहां पर। I hope you understand it. Now we will move towards the next step of a scientific approach in chemistry, that is hypothesis. That is hypothesis. Number 2 step is the hypothesis. Okay, students, hypothesis. When a phenomena is observed, a scientist ponder over it and carries out relevant experiments. He sieves through the different data and arrives at a possible explanation for the nature of the phenomena. The explanation, which is still only a trial idea, is called as the hypothesis. It may be right or may not be. It may or may not undergo a change as a result further investigation and accumulation of more knowledge or facts. Okay, student, this definition is given in your book and it is very detailed and very means a very detailed definition. Every point has been covered in this definition. Now I will explain it. Okay, students, hypothesis. I have read the definition of hypothesis from your book. Now I am going to explain it. Hypothesis. These are two words. It is hypothesis word is made by two words. Okay. Hypo means before and thesis means theory. Hypothesis means before theory. It is the step before theory. So the step which is done before theory, which is processed before theory, that is known as hypothesis. यानी कि वो स्टेप जो कि थ्योरी से पहले आता है, वो कौन सा स्टेप है? वो स्टेप है हाइपोथेसिस. ठीक है, हाइपोथेसिस इन सिंपल वर्डिंग you can say that it is the assumption
एजम्पशन ये यानी किसी इंसान का जो है ये जो इंसान ऑब्जर्वेशन कर रहा है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है और उसके बारे में जानना चाहता है, किसी रिजल्ट तक पहुंचना चाहता है, ये उसके बारे में उस इंसान का अपना ख्याल है, उसकी अपनी ओपिनियन है, उसका अपना ख्याल है ये, जिसमें कि जिसके थ्रू वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूफ करता है या फिर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूफ नहीं कर पाता, ठीक है। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूफ करने के लिए वो रिसर्च करता है, ठीक है ना। अच्छा, रिसर्च कैसे करता है? रिसर्च करने के लिए वो इंसान जो है डेटा कलेक्ट कर सकता है, फैक्ट्स कलेक्ट कर सकता है, एविडेंस कलेक्ट कर सकता है। ओके, आई एम रिपीटिंग, ठीक है। इट इज assumption of a person by which a person can prove his point of view, or he can disprove his point of view. He cannot be able to prove his point of view, and it is all done by the research, ठीक है। How does the research will take place? For research करने के लिए जो हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो जो है, जो रिसर्चर है, वो डेटा कलेक्ट करता है, अपने मैटर के बारे में डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है ना। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करता है। ही कलेक्ट्स द एविडेंस यानी उसकी जो है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको प्रूफ करने के लिए क्या सॉलिड पॉइंट है जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूफ कर सकता है, उसके लिए एविडेंस प्रूफ करता है, गवाही ये एविडेंस प्रूफ करता है। ही कलेक्ट्स द फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है ना। यानी अगर कोई रियलिटीज हैं, फैक्ट्स हैं या फिर फिगर्स हैं, यानी कोई लाइक कैलकुलेशन है, समथिंग, कोई मैटर ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन यूज होती है, ठीक है, मैथमेटिकली किसी चीज को प्रूव किया जा सकता है, तो उसके लिए वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करता है। और साथ ही कैन टेक द एग्जांपल्स, ठीक है ना, किसी एग्जांपल्स से वो उसको अपने मैटर को रिलेट कर सकता है, उसको रिलेट करते हुए वहां से जो है उसको अपने मैटर को स्ट्रांग बनाने के लिए उसको एग्जांपल्स ले सकता है। तो ये सारे काम जो है वो हाइपोथेसिस में करता है, ठीक है। अच्छा, अब हाइपोथेसिस में क्या है? द मेन थिंग इज दैट हाइपोथेसिस मे बी राइट और मे बी रॉन्ग, ठीक है। बल्कि 3 कंडीशन हो सकती है हाइपोथेसिस में। जब कोई इंसान किसी मैटर के बारे में रिसर्च कर रहा है और उसके बारे में हाइपोथेसिस के लिए वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जब कोई रिसर्चर हाइपोथेसिस करता है और वो अपना स्टेटमेंट या अपनी अजम्पशन जो डिस्क्राइब करता है, तो फाइनली उसके सामने 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन आ सकती है, ठीक है। अब वो कंडीशंस क्या हैं? वो कंडीशंस ये हैं कि हाइपोथेसिस मे बी राइट, हाइपोथेसिस मे बी रॉन्ग और हाइपोथेसिस मे बी पार्शियली राइट और पार्शियली रॉन्ग, ठीक है। क्या कंडीशंस हैं? कंडीशंस ये हैं कि हाइपोथेसिस जो रिसर्चर ने डिस्क्राइब किया है वो राइट है, या फिर हाइपोथेसिस रॉन्ग है, या फिर हाइपोथेसिस पार्शियली राइट और पार्शियली रॉन्ग है, ठीक है। यानी जो उसने उसकी अजम्पशन है, उसकी ओपिनियन है, उसकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको अप्रूव हो गई है, ठीक है, या वो रॉन्ग है, डिसअप्रूव हो गई है, या फिर उसका कुछ पार्ट सही है और कुछ पार्ट गलत है। अच्छा, अब अगर तो पहले इस सेकंड कंडीशन को देखते हैं। अगर तो हाइपोथेसिस बिल्कुल ही रॉन्ग है, डिसअप्रूव है, ठीक है, तो वो कैंसिल हो जाएगी, वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, उसके ऊपर आगे कोई रिसर्च वर्क नहीं होगा और वो यानी वो रिमूव हो जाएगी, वो उस आगे प्रोसीड नहीं करेगी, वो खत्म हो जाएगी वहीं पर। उस पॉइंट ऑफ व्यू को आगे डिस्कस नहीं किया जा सकता क्योंकि वो प्रूफ नहीं हो सकी, ठीक है, वो रॉन्ग है। अगर तो थर्ड कंडीशन है जो पार्शियली राइट और पार्शियली रॉन्ग है, तो डिपेंड करता है क्या क्या उस पॉइंट ऑफ व्यू पे पहले काम हो चुका है या नहीं हुआ है, क्या उस पर काम करने की जरूरत है या उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, उससे कोई फायदा है और उसको क्या आगे बढ़ाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि इसको आगे कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए, इट डिपेंड्स, ठीक है ना। अच्छा, या अगर हाइपोथेसिस राइट हो गई है फिर तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट कंडीशन है कि नाउ हाइपोथेसिस विल मूव टुवर्ड्स द थ्योरी, ठीक है ना। अगर हाइपोथेसिस राइट है, ठीक है, बिल्कुल उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव हो गए हैं, वो राइट हैं, वो साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूफ हो रहे हैं और उसमें किसी किस्म का कोई हर्डल या कोई उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, तो क्या है, वो जो है हाइपोथेसिस को
हम राइट मानेंगे और सही मानते हुए उसको आगे वो थ्योरी की तरफ मूव करेगी, वो थ्योरी में की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये कि रिसर्च वर्क हमारा आगे प्रोसीड होगा, रिसर्च वर्क आगे बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई एम अगेन रिपीटिंग, जो हाइपोथेसिस जो है आपके पास, व्हाट इज द हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस you know that it is a phenomena, ठीक है, phenomena है, it is based it is a phenomena and it is a scientific ponders thing over it, ठीक है ना। ये जो साइंटिस्ट जो रिसर्चर्स हैं वो उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में अपना डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। और जो है जब वो एक ट्रायल बेसिस होती है, जो ट्रायल आइडिया होता है, हाइपोथेसिस इज आल्सो कॉल्ड एज द ट्रायल आइडिया। इसको हम ट्रायल आइडिया भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसा आइडिया है जो कि जिसको प्रूव करने के लिए, ऐसा आइडिया है जिसको प्रूव करने के लिए कोशिश की जा रही है, इट इज ट्रायल आइडिया, ठीक है। ये ट्रायल आइडिया है जिसको प्रूव करने के लिए जो रिसर्चर है वो पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जब हाइपोथेसिस कंप्लीट हो जाती है, रिसर्चर का वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो वो जब उसको और साइंटिस्ट के आगे रिप्रेजेंट करता है तो उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करना पड़ता है। अगर तो वो पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव हो जाए तो इट्स ओके, इट विल प्रोसीड टुवर्ड्स द थ्योरी, ये थ्योरी की तरफ प्रोसीड करेगी और वो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर जो है वो प्रूफ ना हो, रॉन्ग हो, तो वो काम वहीं पे फिनिश हो जाएगा। और पार्शियली राइट हो या पार्शियली रॉन्ग हो तो इस बारे में जो है रिसर्चर डिसाइड करेगा कि उसे आगे इस काम को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, उसके ऊपर काम करना बेनिफिशियल है या नहीं है। So that is the hypothesis. Now students, we will move towards the theory. Theory is the third step in the scientific approach in chemistry. Now what is theory? ठीक है, the theory the scientist has hypothesis is hypothesis to other workers of the same field for the discussion and for further experiments. When the hypothesis is supported by a large amount of different types of observations and experiments, then it becomes a theory, scientifically acceptable idea or principle to explain a phenomena. A good theory predicts new facts and universal new relationship between naturally occurring phenomena. ठीक है, देखिए थ्योरी क्या है आपके पास? थ्योरी जब किसी इंसान की हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती है तो वो जो हाइपोथेसिस है दूसरे साइंटिस्ट के सामने रिप्रेजेंट की जाती है। हाइपोथेसिस को दूसरे साइंटिस्ट के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और रिप्रेजेंट करने के बाद वो साइंटिस्ट जो है उसके ऊपर काम करते हैं और उसके बारे में और ज़्यादा एविडेंस, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं। और जब बहुत सारे साइंटिस्ट उसके ऊपर काम करते हैं और उसको सही एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको हर तरह से सेटिस्फाइड हो जाते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस हाइपोथेसिस से, और उसके बारे में डेटा हर तरह से सेटिस्फाइड डेटा कलेक्ट हो जाता है और उसके बारे में बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में एविडेंस मिलती है और हर तरह से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो अब उस हाइपोथेसिस को, वो हाइपोथेसिस नहीं रहती बल्कि उसको अब थ्योरी कहा जाता है। यानी वो जो प्रूवन हाइपोथेसिस है, प्रूवन और राइट जो हाइपोथेसिस है, नाउ इट इज नोन एज द थ्योरी। अब इस थ्योरी को जो है इसे थ्योरी कहा जाता है। अब थ्योरी जो है ज़ाहिर बहुत सारे साइंटिस्ट इसको ओके करते हैं, यानी उसको अप्रूव करते हैं। ये बहुत सारे साइंटिस्ट से अप्रूव होकर आती है, तो इसको अब इजीली कोई भी आकर चैलेंज नहीं कर सकता कि ये गलत है। अगर कोई रिसर्चर आके किसी थ्योरी को, ठीक है, चैलेंज करता है कि इसमें ये पॉइंट सही नहीं है, ये पॉइंट गलत है, तो उसको फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रूव करना होता है कि ये रॉन्ग है तो ये राइट है, ठीक है। ऐसा हुआ भी है, बहुत सारी थ्योरीज ऐसी आई हैं। अभी मैं आपको बहुत सारी थ्योरीज के नाम बताऊंगी। थ्योरीज ऐसी थ्योरीज भी आई हैं जो कि पहले राइट कंसीडर की गई, उनको बहुत टाइम तक जो है उनको सही माना गया। उसके बाद जो है कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको, बहुत कम ऐसी थ्योरीज आई हैं जिनको दूसरे साइंटिस्ट ने फिर चैलेंज किया और उसको चैलेंज करने के बाद
उन्होंने उसको जो है रॉन्ग डिक्लेयर किया, लेकिन जब उन्होंने रॉन्ग डिक्लेयर किया तो उनको फिर राइट थ्योरी जो है रिप्रेजेंट करना पड़ा कि क्या राइट पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको प्रूव करना पड़ा। जब उनका पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव हुआ उस पहली वाली थ्योरी के अगेंस्ट में, तो फिर पहली वाली थ्योरी जो है उसको कैंसिल किया गया। फॉर एग्जाम्पल आई गिव इट एग्जाम्पल लाइक ए बायोजेनेसिस। एक बायो में बायोलॉजी में साइंस में एक बहुत फेमस थ्योरी है दैट इज कॉल्ड द ए बायोजेनेसिस एंड द ठीक है, ए बायोजेनेसिस थ्योरी इज दैट कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे लिविंग थिंग्स जो है प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये एक थ्योरी है जो एक बहुत टाइम तक उसको सही राइट एक्सेप्ट किया गया, लेकिन फिर बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को कैंसिल किया। इस थ्योरी के अगेंस्ट में उन्होंने एक न्यू थ्योरी रिप्रेजेंट की दैट इज कॉल्ड एज द बायोजेनेसिस। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लिविंग थिंग्स हैं सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, और इस थ्योरी को साइंटिस्ट ने जो है बहुत एविडेंस के साथ, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट, क्लियर एक्सपेरिमेंट्स के साथ प्रूव किया। तो इस तरह से ये थ्योरी जो बायोजेनेसिस थ्योरी जो बहुत टाइम तक सही मानी गई थी वो रॉन्ग प्रूफ हो गई, और उसके अगेंस्ट में नई न्यू थ्योरी आई जो कि बायोजेनेसिस थी, जो कि राइट प्रूफ हुई। वैसे मोस्टली 90% और 90 से अब परसेंट जो थ्योरी से वो राइट होती हैं। किसी भी थ्योरी को चैलेंज करना कोई इतना इजी काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आप कोई भी रिसर्चर किसी थ्योरी को चैलेंज कर रहा है कि ये रॉन्ग है, तो उसको जो है उसके एविडेंस में राइट थ्योरी प्रूफ करना पड़ेगा दूसरे साइंटिस्ट के सामने। तो जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि किसी भी चीज के रिजल्ट तक हमें पहुंचाती है। ठीक है, ये थ्योरी साइंटिफिकली अप्रूव्ड होती है, साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल आइडिया है, और जो है ये एक तरह से किसी चीज का किसी भी मैटर का एक प्रिंसिपल है, उसूल है, रूल है। ठीक है, जिसके अगेंस्ट काम नहीं हो सकता। ठीक है, जिसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। दैट इज द theory. Now, students, I will tell you a few names of the famous theories. ठीक है, कुछ famous theories के मैं आपको नाम बताती हूँ। The most famous theory in the world that is known as Big Bang theory. Big Bang theory यानी शायद आपने सुना हो। ये थ्योरी ये है कि एक धमाके से दुनिया जो है ना प्रोड्यूस हो गई, कुछ ऐसा एक्सप्लोजन हुआ, एक ऐसा धमाका हुआ जिसके थ्रू जो है दुनिया जो है ये दुनिया जो है वजूद में आ गई। ऐसा थ्योरी के थ्रू माना जाता है, जो कि बिग बैंग थ्योरी कहलाती है। ठीक है, इस तरह से एक थ्योरी है जो आपके सिलेबस में भी आएगी, चैप्टर नंबर 6 में, स्टेट्स ऑफ मैटर में, दैट इज नोन एज द ब्राउनियन मूवमेंट थ्योरी। ठीक है ना, ब्राउनियन मूवमेंट थ्योरी। बहुत सारी थ्योरीज है जब ठीक है, अभी मैं आपको इन सब की थ्योरीज की डिटेल नहीं बता सकती, लेकिन ये टाइम टू टाइम जब भी थ्योरीज आएंगी तो हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, तो आपको इनके बारे में ज़्यादा बेटर पता चलेगा कि क्या क्या थ्योरीज है और किसके बारे में है। ठीक है, एक तो फेमस थ्योरी है ऑक्सीजन थ्योरी ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन थ्योरी ऑफ कंबशन यानी जो बर्निंग प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की की प्रेजेंस में ही हो सकता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। ये भी थ्योरी है। ठीक है, इस तरह से एक थ्योरी है न्यूक्लियर फिशन थ्योरी। न्यूक्लियर फिशन थ्योरी न्यूक्लियर फ्यूजन थ्योरी। ठीक है, ये भी बड़ी फेमस थ्योरीज है। बायोजेनेसिस थ्योरी, ए बायोजेनेसिस थ्योरी आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ए बायोजेनेसिस थ्योरी बायोजेनेसिस थ्योरी। ठीक है, ये ओल्ड थ्योरी जो कि रॉन्ग थी, ए बायोजेनेसिस थ्योरी वाज रॉन्ग थ्योरी, ए बायोजेनेसिस वाज द राइट थ्योरी, जो बाद में राइट प्रूव की गई। ठीक है, नेक्स्ट मे बी द नेक्स्ट इज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। ठीक है, फर्मेंटेशन थ्योरी। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस वी विल स्टडी फर्दर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, ये आएगा प्रोसेस, फर्मेंटेशन थ्योरी कहलाती है ये, फर्मेंटेशन थ्योरी। नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग और ग्रोइंग अर्थ। नंबर 10 इज द थ्योरी
theory of expanding or growing earth. ठीक है, theory of expanding or growing earth, right class? I'm again repeating Big Bang theory. These are बहुत सारी थ्योरीज हैं, इनमें से फेमस नहीं मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा फेमस है हर जगह, बहुत बेसिक थ्योरीज हैं. बिग बैंग थ्योरी, ब्राउनियन मूवमेंट थ्योरी, ऑक्सीजन थ्योरी ऑफ कंबशन, न्यूक्लियर फिशन थ्योरी, न्यूक्लियर फ्यूजन थ्योरी, बायोजेनेसिस थ्योरी, सेल थ्योरी, फर्मेंटेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन, थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग और ग्रोइंग अर्थ. ठीक है, सो दीज आर वेरी फेमस थ्योरीज. Okay students, we will move towards the last step of scientific approach in chemistry, that is scientific law or principle. It is known as scientific law or principle. Okay, now according to the scientific law, the definition which is given in the book, according to that, a theory which is tested again and again and it is found to fit the facts. It is found to fit the facts and from which valid predictions may be made is known as the scientific law or principle. यानी scientific law और principle, scientific law भी कहते हैं इसे, scientific principle भी कहते हैं, वो थ्योरी जिसको जो है बार बार प्रूफ किया जाए. ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करने के बाद इसको बार बार प्रूफ किया जाए, जिसमें किसी किस्म की ऑब्जेक्शन ना हो सके, कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके उसे, और जो जिसको उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स सपोर्ट करते हों, और पॉसिबली हो सकता है कि उसकी सपोर्ट में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हों. ठीक है, जरूरी नहीं कि हर थ्योरी को मैथमेटिकली प्रूफ किया जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ थ्योरीज ऐसी हो जिनको मैथमेटिकली भी प्रूफ किया जाए. ठीक है ना, दो तरह की थ्योरीज हो सकती है, जो मैथमेटिकली प्रूफ भी हो जाए और मैथमेटिकली फैक्ट्स एंड फिगर के थ्रू वो मैथमेटिकली फिगर्स ना हो उसमें. ठीक है, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं. तो वो थ्योरी जो कि बार बार प्रूफ की जाए, बार बार उसको जो है उसके ऊपर वो 100% रिजल्ट उसका सेम आए, करेक्ट आए. ठीक है, उसके ऊपर किसी किस्म का ऑब्जेक्शन कोई रिसर्चर ना कर सके. ठीक है, और जो है उसके सपोर्ट में कुछ फैक्ट्स और फिगर्स भी हों, और हो सकते हैं कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हो उसके सपोर्ट में. तो इस तरह की जो थ्योरी है वो अब साइंटिफिक लॉ कहलाती है. ओके स्टूडेंट्स, यानी जो थ्योरी है कब थ्योरी ही साइंटिफिक लॉ बनती है. ठीक है, कब बनती है? उस वक्त जबकि थ्योरी में किसी किस्म की कोई क्वेश्चनिंग ना हो सके उसके ऊपर, उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना हो सके उसके ऊपर, वो हर तरह से सेटिस्फाइड हो, हर तरह का उसका आंसर हो, उसको चैलेंज कोई ना कर सके उसको. ठीक है, और जब भी उसको टेस्ट किया जाए, जब भी उसको चेक किया जाए, उसका रिजल्ट हमेशा राइट मिले, करेक्ट मिले, सेम मिले उसका. तो ऐसी थ्योरी जो है वो साइंटिफिक लॉ कहलाती है. और हो सकता है कि जो साइंटिफिक लॉ है उसकी सपोर्ट में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हो. तो ऐसी थ्योरीज जो है वो साइंटिफिक लॉ कहलाती हैं. ठीक है, okay, there are many scientific law. I will tell you. The scientists have represented many scientific law. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, बहुत इजी है. वो थ्योरी साइंटिफिक थ्योरी ही साइंटिफिक लॉ बनती है, लेकिन हर थ्योरी साइंटिफिक लॉ नहीं बनती है. कौन सी थ्योरी साइंटिफिक लॉ बनती है? वो थ्योरी जिसका 100% रिजल्ट सेम हो हमेशा. जब बार बार चेक किया जाए, हर तरह चेक किया जाए, तो उसका रिजल्ट हमेशा 100% सेम रिजल्ट आ रहा हो. इस पर किसी किस्म की कोई क्वेश्चन ना हो, कोई सवाल उसका ऐसा ना हो जिसका आंसर मालूम ना हो, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना हो उसके ऊपर. तो ऐसी थ्योरी जो है वो साइंटिफिक लॉ बनती है. इसलिए कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो है थ्योरी जो है वो वैसे तो थ्योरीज राइट होती हैं, बहुत साइंटिफिक प्रूफ होती है, लेकिन ऐसा भी हुआ है कभी कि जो है कभी कोई थ्योरी को कुछ टाइम के बाद आने वाले रिसर्चर्स ने उसको रॉन्ग जो है डिक्लेयर किया, और रॉन्ग डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने फिर उसकी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूफ करने के लिए न्यू थ्योरी उन्होंने रिप्रेजेंट की. तो ऐसा पॉसिबल है कि थ्योरी जो है कभी रॉन्ग भी प्रूफ हो जाए.
लेकिन साइंटिफिक लॉ कभी भी प्रूफ नहीं होता, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए कि उसको बार बार टेस्ट किया जाता है, बार बार अगेन एंड अगेन टेस्ट किया जाता है, और हर दफ़ा उसका जो है रिजल्ट वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलता है, सही मिलता है, ठीक है। और उसके सपोर्ट में बहुत एविडेंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकती हैं। तो ऐसी जो थ्योरी है वो साइंटिफिक लॉ की पोजीशन ले लेती है, जिसको किसी भी तरह से किसी किस्म की ऑब्जेक्शन ना हो उसके ऊपर, किसी किस्म को उसको चैलेंज ना किया जा सके, और वो 100% जो है बिल्कुल राइट हो और टेस्टेड हो, ठीक है। तो ऐसी थ्योरी जो है वो साइंटिफिक लॉ की बन जाती है, ठीक है, साइंटिफिक लॉ की पोजीशन ले लेती है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आई विल टेल यू फ्यू फेमस साइंटिफिक लॉज, ठीक है, लाइक हेनरी लॉ, ठीक है। ये कुछ इसमें से कुछ लॉज जो है वो आप अपने केमिस्ट्री बुक में पढ़ेंगे। हेनरी लॉ यू विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 6 में आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। लाइक फैराडेज लॉ, ठीक है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फैराडेज लॉज of electrolysis, these are first and second law, first and second law, दो फेमस लॉ हैं इसके, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल law of gravitation. You know that the scientist Isaac Newton, he proved about the gravity. So this law relates to him, Isaac Newton, ठीक है। Then next law is the Newton's law of motion, ठीक है, Newton's law of motion, Newton's law of motion. Next is the law of thermodynamics. Law of thermodynamics हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स जो है एक ब्रांच है, वो उसको जो है स्टडी किया जाता है, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। नेक्स्ट इज द मेंडलीव लॉ, ठीक है, एक लॉ है दैट इज नोन एज द मेंडलीव लॉ, साइंटिस्ट है मेंडलीव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट इज द एवोगाड्रो लॉ, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 में आएगा, एवोगाड्रो लॉ, ठीक है, साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। तो और है आपके पास नेक्स्ट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, Kepler was scientist, Kepler's law of planetary motion. Okay, these are the laws, and few laws which are also very important and famous, which we will study in chapter number 2. I will tell you the name, law of conservation of mass. I'm not writing here, students. You can see in the at the page number 11. These laws are given here. Chapter number 2, law of conservation of mass. That is very famous law. Again, law of constant composition. It is also called as a law of definite proportion. इसी का नाम है, दो नाम है इस लॉ के, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये 4 लॉज भी जो है आपके पास बुक में दिए हुए हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। So it is all about the scientific approach in chemistry, students. I have told you about the observation, about hypothesis, then about theory, then I have told you about the scientific law, ठीक है। Hopefully you have understood it all. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है बुक से प्लीज़ हेल्प ले सकते हो। बुक में भी बहुत डिटेल में बहुत अच्छा गिवन है, or you can listen the lecture in repeat, so it will help you. और जो है I think you should take a homework. I am going to give you one more question, student. Hopefully you have done the previous homework, ठीक है। तो आप next question होमवर्क में ले लें। आई एम गिविंग यू ओनली 1 क्वेश्चन। मैं थोड़ा थोड़ा होमवर्क दे रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा नहीं दे रही। आई डोंट वांट टू बट नाइस यू, लेकिन प्लीज़ जो है
टाइम टू टाइम आप ये करते रहिए, साथ साथ करते रहिए, ताकि आपके पास होमवर्क करेक्ट ना हो और जो है आपके ऊपर एक साथ लोड ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम गिविंग यू, दैट आई थिंक इट्स क्वेश्चन नंबर 4, यू चेक द नंबर्स, ठीक है। इट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट, सब पेमेंट्स का क्वेश्चन नंबर 3, ओके स्टूडेंट, इट इज द क्वेश्चन इन विच the question is that what do you know about ठीक है, about number 1 observation, number 2 hypothesis, theory and scientific लॉ और प्रिंसिपल, ठीक है। आपको इन सब के बारे में जो है आपने प्रिंसिपल, ठीक है स्टूडेंट, आपको इनके बारे में जो है डिफाइन करना है, इनके बारे में रजिस्टर्स में आपने लिखना है इनके बारे में। सो यू कैन टेक द डेफिनेशन फ्रॉम द बुक और सम पॉइंट्स आर आल्सो गिवन इन द समरी, ठीक है। अब समरी में भी कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप वहाँ से स्टडी करें, लेकिन वहाँ पे भी ब्रीफ पॉइंट है, वहाँ पे बेटर है कि आप जो है ना बुक्स की जो डेफिनेशन है उसको लीजिए, वहाँ से करिए, वो कंप्लीट डेफिनेशन है, ठीक है, और सारे पॉइंट्स को कवर करती है। तो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।